Hello everyone, welcome again to the Hindu news analysis session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of Manolaw classes. So in today's session I will discuss with you most important news from your examination point of view. For example, recent survey or recent economic survey regarding the growth of India, some news or the decision of Delhi High Court regarding the marital rape, or basically we don't have the provisions of marital rape in India, so should we have it and what will be its implication. Next I will discuss with you the forest cover of India has been increased, and next the constitutional validity of this house of legislature to suspend the members on the ground of misbehavior. So now we come to all these news one by one, and the first news before us is the survey pegs growth 8, 8 to 8.5 in 2022 and 2023. So basically you know that the budget will be introduced today. So according to the economic survey report, the India's GDP is expected to grow by 9.2 this year. This year means this 21, and it is expected to grow 8% to 8.5% in the coming years of 2022 and 2023. This information or this was suggested by the newly appointed Chief Economic Advisor Mr. V. Anantha. So there are some grounds behind this. ऐसा क्यों कह रहे हैं जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट लोग हैं कि वी मे हैव द ग्रोथ ऑफ 8 to 8.5 दिस ईयर. उनके पीछे लॉजिक ये है कि वी होप दैट देयर विल नॉट बी कोविड फर्दर इन द कमिंग ईयर. सेकेंड, द मानसून विल ऑल्सो प्रॉपरली वर्क. नेक्स्ट, the price of the crude oil in the international market is $75 per barrel. So on the basis of all these statements or all these points, it is the apprehensions or it is the expectation that we may have the growth of 8 to 8.5 in the coming year of 2022 and 2023. Now we come to the next. All these news are not relevant from your examination point of view. We have to focus upon only the most important news which are very important from your examination point of view. So now this honorable high court again reiterated the fact that no moral policing if two adults stay together. So basically recently Madhya Pradesh High Court has held that if the two adults person wants to live either in the form of marriage or in the live-in relationship, then they are allowed and they cannot be prevented or they cannot be prohibited by anyone. So I'm quoting here that one of the important decision of Honorable Supreme Court in the case of Hadia case. So what happened in the case of Hadia case? एक लड़की अपनी मर्जी से अपने धर्म को कन्वर्ट करके she accept the Muslim religion and she fall in love with a Muslim person. So there was some apprehension or there was some accusation from the side of the father of the girl that this Muslim boy compelled the girl to change her religion. उस लड़की के फादर ने मुस्लिम लड़के पर ये आरोप लगाए कि मुस्लिम लड़के ने उसकी बेटी को कंपेल किया है कि वो अपना रिलीजन चेंज करे और वो उसके साथ रहे, और वो उसके साथ अपनी इच्छा से नहीं रह रही थी, अपनी मर्जी से नहीं रह रही थी. लेकिन when she gave the statement before honorable court that she was living with her own consent, so honorable court held that two adults, if two adults have the right to live with any person to whom they want to live, either in the form of marriage or in the form of live-in relationship. And if we see the root of this law,
So we find the root of this law in Article 21 of Constitution of India, which gives right to life and personal liberty. So basically right to life and personal liberty, basically the word personal liberty here means two adult person have the right to live with any person to whom they want to live or with whom they want to live. तो दो एडल्ट पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हैं, या आपस में अगर दोनों पर्सन एडल्ट हैं तो वो रह सकते हैं, एंड इट विल नॉट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ एनी लॉ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर वो कंपेल किया जा रहा है उनको एक दूसरे के साथ रहने के लिए, या उनके साथ उनकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, दैट then it will not be a question of fundamental right in the Article 21, rather it will be deemed that the consent was not free as per section 90 of IPC. Now we come to the again very important aspect, can striking down an exception create new offense? High Court. So basically recently Delhi High Court, a petition was moved in Delhi High Court regarding that the exception which provide that if a husband has sexual intercourse with his own wife and the age of wife is 18 years or above, then it will not amount to an offense of rape. So for understanding this, first of all we should understand the basic definition of rape. The term rape has been defined under section 375 of IPC, and according to this definition, if any person or any male has sexual intercourse with a female without her consent, then it becomes an offense of rape. अगर कोई भी मेल किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उस फीमेल की कंसेंट के बिना, तब ये रेप का ऑफेंस माना जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वाइफ की कंसेंट के बिना करता है, मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स इज विदाउट कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, तब ये ऑफेंस ऑफ रेप नहीं माना जाता। तो यहीं पर जो पिटिशनर हैं, पिटिशनर का कंसर्न ये था कि ये ऑफेंस ऑफ मैरिटल रेप माना जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में मैरिटल रेप से संबंधित कोई भी प्रोविजंस नहीं है। अब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन ये आया कि अगर हम इस एक्सेप्शन को, जो कि इसको मैरिटल रेप नहीं मानता, देखिएगा क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और सेक्सुअल इंटरकोर्स उस फीमेल की कंसेंट के बिना हो रहा है, तो अगर ये पर्सन जो यानी कि जो मेल है जो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उसका हस्बैंड नहीं होता तो ये ऑफेंस ऑफ रेप होता। लेकिन क्योंकि वो हस्बैंड है, क्या ये केवल इस रीजन से उसको रेप नहीं माना जाना चाहिए? तो दिस पॉइंट इज रॉन्ग, ये पॉइंट गलत है। तो दिस वाज द कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द petitioner in this case was करुणा नंदी। सो करुणा नंदी ने ये कहा है कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस ऑफ रेप। ये जो एक्सेप्शन है विच गिव्स द प्रोटेक्शन टू द हस्बैंड एंड हस्बैंड विल नॉट बी चार्ज फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप, इट शुड बी स्ट्रक डाउन। पर यहाँ पर एक एप्रीहेंशन ये है कि इफ दिस एक्सेप्शन विल बी स्ट्रक डाउन बाय ऑनरेबल कोर्ट, देन इट विल बी एन ऑफेंस ऑफ रेप। क्वेश्चन ये आया कि वेदर अ कोर्ट कैन क्रिएट न्यू ऑफेंस। देखिए कोर्ट क्या है? कोर्ट फॉल विद इन द जुडिशरी एंड जुडिशरी डज नॉट हैव द राइट टू क्रिएट लॉ, रादर जुडिशरी हैज द राइट टू इंटरप्रेट द लॉ and the right of interpretation lies with the Honorable Supreme Court only. So if Honorable High Court will strike down this exception which gives protection to the husband, then it will also amount to that Honorable Court has created a new offense. So this is a question of law before court. Next point or the next contention on the part of this petitioner was that if a person has committed the offense of rape, if a person has committed sexual intercourse with the woman and irrespective of fact that she is his wife, तो क्या एक पर्सन अगर वो हस्बैंड है और उसने अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है बिना उसकी कंसेंट से, तो क्या केवल हस्बैंड होने से वो एक रेपिस्ट नहीं माना जाना चाहिए? कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ करुणा नंदी ये है
कि it should be treated as the offense of rape. Second point is that the female should not be treated as the property of male. फीमेल को मेल की प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए. So this is the important news, and this is very important from your examination point of view. Marital rape, because it is a controversial issue and examiner may ask question based upon it. एग्जामिनर इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट. सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एडिटोरियल, द माइंड एंड द स्टेट ऑफ रशियाज प्रेसिडेंट. सो बेसिकली यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आजकल रशिया, यूएसए एंड यूक्रेन के बीच में एक टेंशन चल रही है. टेंशन, द रीजन बिहाइंड टेंशन इज दैट Ukraine wants to get the membership of NATO, North Atlantic Treaty Organization, and इससे क्या होगा, if Ukraine will get the membership of NATO, then it will amount to expansion of NATO in the north, and it will affect the security interest of Russia. तो रशिया इसके यूक्रेन की मेंबरशिप, यूक्रेन की जो मेंबरशिप है रिगार्डिंग नाटो, इसका रशिया ऑब्जेक्शन कर रहा है. रशिया का पॉइंट ये है कि इट विल अफेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ठीक है. दूसरी बात ये है, दीज टू ग्रुप्स नाटो एंड यूएसएसआर, तो यूएसएसआर की एक फोर्स थी, लेकिन यूएसएसआर हैज बीन ब्रोकन डाउन इन 1991. सो नाउ it is a serious issue, or it's a question of threat or question of security for Russia, that Russia does not want that then there should be the expansion of NATO. That is the main reason. But the dialogues between the two countries are going on, and Russia recently said that it does not want any kind of war, rather it is in tension regarding its own security. Now we come to the next important, the supreme failure. By failing to decide key constitutional case in a timely way, the apex court has not acted as a सेंटिनल ऑन इक्वल. इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ वी टेक और वी अंडरस्टैंड जस्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और द ग्रास रूट लेवल. नाउ यू गो टू आर्टिकल 21. यू मे बी अवेयर अबाउट आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शैल बी deprived of his life and पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. किसी भी पर्सन को उसके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से नहीं डेप्राइव किया जाएगा, और डेप्राइव अगर किया जाएगा तो इट विल बी ओनली बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट any procedure which is not just fair and reasonable cannot be said to be procedure established by law. मीन्स अगर कोई प्रोसीजर जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं है तो उसको हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं कह सकते, हम उसको हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं मान सकते. नाउ यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि देर आर वेरियस केसेस. अच्छा, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इसके तीन एस्पेक्ट होते हैं. पहला होता है जस्ट. जस्ट का मतलब होता है स्पीडी ट्रायल. तो किसी भी केस का जो ट्रायल है वो स्पीडी और एक टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए. सो सेकंड क्या है, फेयर. फेयर मीन्स फेयर ट्रायल, मीन्स बोथ द पार्टीज मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज. एंड थर्ड इज रीजन डिसीजन, मीन्स while any case is decided by honorable court, then honorable court must give the reason for that. तो honorable court को इसका रीजन देना चाहिए कि उसने केस को क्यों डिसाइड किया. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये कि जो ऑथर हैं इसमें प्रभास रंजन जी का कंसर्न ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारे जो लैंडमार्क जजमेंट हैं और जो बहुत से कंट्रोवर्शियल इशू से रिलेटेड हैं, दे आर लैगिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और वी आर नॉट हैविंग एनी फाइनल वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दीज मैटर्स. जैसे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं. एक एग्जांपल हम लेते हैं विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये जो डिसीजन है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये डिमोनेटाइजेशन से संबंधित है. तो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था आई थिंक 2016 में हुआ था, लेकिन
अभी डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसके काफ़ी मतलब बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए एज पर द एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, लेकिन द डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड इशू इज रिगार्डिंग द दिस इलेक्ट्रोल bond. So the issue regarding electoral bond is also controversial, but this issue is also under consideration by Honorable Supreme Court. So the concern of the author in this article is that Honorable Court decides such important issues very quickly and in a time bound manner, so that we may have the good understanding of all such issues, and these issues will not remain in controversy. Now we come to next. So this is the factual information, just maybe asked in some of the MCQ type examination. King Mahendra of Nepal died. So basically नेपाल में किंग महेंद्र थे, उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू हार्ट अटैक, एंड ही वाज ऑफ 51 ईयर्स ओल्ड ओनली। और उनकी जगह जो उनके दूसरे मतलब उनके सन थे क्राउन प्रिंस ब्रेंद्रा, उनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो अब उनकी डेथ हो गई है। तो दिस में भी MCQ टाइप क्वेश्चन, नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू, इट मे बी रेलिवेंट फ्रॉम द दिस DU examination point of view. Now, Honorable Prime Minister had raised his apprehension that the budget session important make it constructive fruitful. तो उन्होंने सभी जो लीडर्स हैं, सभी रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं हाउस के, उनसे रिक्वेस्ट की है और ये कहा है कि भाई ये जो बजट सेशन है इट शुड बी फ्रूटफुल, इसमें nobody should oppose each other, rather they must talk in a constructive manner. So whatever they want to talk, they must talk in a constructive manner, and they should not try to hindrance the proceedings of the house. Basically, if the proceeding of the house will be in hindrance, then it will affect the concept of democracy, and it will also affect the interest of the citizens of India. Now the next important news is इंडिया रशिया होल्ड डिस्कशन ऑन UN सिक्योरिटी एजेंडा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए। अब देखिए रशिया जो है अहेड ऑफ रशियाज अपकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब रशिया एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बनने जा रहा है, प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। तो एक प्रेसिडेंसी आएगी इस पर। तो यहाँ पर अब इशू इंडिया और रशिया, ये इसमें एक जो बायलैटरल टॉक हुई दोनों के बीच में, इसमें ये डिसाइड लिया गया कि वे दोनों एक ऐसे डिसीजन लेंगे ताकि जो हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें इंडिया और रशिया दोनों रहते हैं, वहाँ पर एक वो आए, सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हो और किसी का कोई तरीके से लॉस ना हो। अब यहाँ पर दो न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। यू मे नॉट गेट द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस ऑन पैसेज। फर्स्ट इज द who will become this president of सिक्योरिटी काउंसिल। तो आंसर इज रशिया। एंड अभी जनरल असेंबली का एक 76 सेशन हो रहा है। 76 सेशन में जो जनरल असेंबली के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। सेकंड इसमें क्या है कि रशिया ने ये भी कहा है कि रशिया हैज रेज इज कंसर्न रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ यूक्रेन इन द नाटो। दिस न्यूज इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड द न्यूज इज दैट इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 24% हो गया है टोटल एरिया का। सो दिस इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये इंफॉर्मेशन जो है this 24% of India's total geographical area is under the forest cover and it amounts to 2% of the world's total forest cover. तो जितना संसार में टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका 2% फॉरेस्ट कवर इंडिया में पाया जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ 10 कंट्रीज दिए हुए हैं जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। सो पहला फॉरेस्ट कवर है जहाँ सबसे ज़्यादा 59 है, इसमें ब्राज़ील में, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक टेबल बना लेंगे और टेबल में स्टार्टिंग के 3 याद करेंगे। यू नीड नॉट टू लर्न ऑल द 10 कंट्रीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इंडिया। तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है, 24%। तो दिस में भी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। नाउ 2 jailed in Hong Kong for seditious publication. So this is again important.
So as I discussed with you, sedition क्या होता है? Creating disaffection in the mind of people against the legally established government. So this sedition is also an offense under section 124A of IPC. So इसका मतलब क्या होता है? सेडिशन एक ऑफेंस होता है भारत में भी। रिसेंटली 2 लोगों को जेल हुआ है हांगकांग में, ठीक है। सो बिकॉज बेसिकली वी आर नॉट कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर न्यूज, रादर वी आर कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर वर्ड सेडिशियस और सेडिशन। सो सेडिशन से संबंधित प्रोविजंस जो हैं वी आर हैविंग इन अवर आईपीसी अंडर सेक्शन 124A। और इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कोई पर्सन लीगली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट करता है, डिसअफेक्शन का मतलब है डिसलॉयल्टी, या लोगों को भड़काता है किसी गवर्नमेंट को उखाड़ने को, such candidate or such person will be liable for the offense of sedition. This news is important, not so important, but the word given in the news is very important. Examiner makes the question from that section or that article which are mostly in news in the last 6 months. Center has adopted MSP but state must facilitate crop shift. अब देखिए यहाँ पर है, तो अभी देखिएगा हमारे देश में क्या है कि MSP की डिमांड चल रही है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दे विल कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी ऑन इट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द MSP। तो MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो भी फसल किसान लगाता है उसका सरकार एक निश्चित प्राइस डिसाइड करती है। सपोज किसान ने गेहूं लगाए तो गेहूं का एक मिनिमम प्राइस होगा, सरकार डिसाइड करेगी। तो अगर इफ द फार्मर इज नॉट एबल टू सेल हिज प्रोड्यूस इन द ओपन मार्केट, देन ही कैन गिव दैट प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट ऑन दैट स्टेटेड प्राइस बाय द गवर्नमेंट। इसी को हम बोलते हैं MSP। तो अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर कंसर्न क्या है कि वी नीड टू शिफ्ट आवर दिस क्रॉप। शिफ्ट आवर क्रॉप कैसे? हमको ऐसी क्रॉप लगानी चाहिए या हमारे किसानों को ऐसी क्रॉप लगानी चाहिए जो कि जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा हो, जिनको हम की कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप का मतलब जिनको हम बेचकर पैसे कमा सकते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसी क्रॉप लगानी चाहिए जिनसे कि जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। इससे क्या होगा? हमारे पास पानी भी बचा रहेगा और किसानों के पास कैश भी आ जाएगा। नाउ so this issue I discussed with you in 2-3 days before. This issue regarding the limit of legislature's power to suspend a member. So Honorable Supreme Court regarding the issue of 12 MLA suspended in the Maharashtra Legislative Assembly held that a member can only be suspended during the period of session of the particular house, and if the member is suspended beyond the period of session of house, it affects the representation of people or it also affects the representation in house. So ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि किसी भी मेंबर का जो सस्पेंशन है वो केवल मैक्सिमम पीरियड जो है वो सेशन तक के लिए होना चाहिए और इससे ज़्यादा पीरियड के लिए उसका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पीरियड के लिए उसका सस्पेंशन होगा तो ये क्या होगा, ये वो जो हमारी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं इट विल आल्सो अफेक्ट अवर कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस रिगार्डिंग में एक आर्टिकल कोट किया है, दैट इज आर्टिकल 190 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 190 क्लॉज 4 में इससे संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई विल कम अगेन विद द डेली न्यूज एनालिसिस। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।